This is part 2 of the series of idioms. In this video, I have taken up 25 idioms which are going to be very useful for all the competitive exams. So, number 1 idiom is one swallow does not make a summer. Swallow एक word होती है जिसके आने से summer का पता चलेगा. But if there is one swallow only, we cannot say summer has arrived. To say that summer has arrived, there should be a large number of birds, swallows. So this idiom means that from one positive sign or from one success, you cannot say that situation has changed. मतलब एक घटना से आप पूरी स्थिति का जायजा या अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. For example, after a series of defeats, the team won a match in the tournament. But one swallow does not make a summer. Just on the basis of one victory, we cannot say that the team is going to win other matches too. Another example is, after a series of setbacks, the company is making some profits. One swallow does not make a summer. Similarly, जैसे वो कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट कमाया है बहुत सारे सेटबैक्स के साथ, बस सिर्फ थोड़े प्रॉफिट के बेसिस पे हम नहीं कह सकते हैं कि कंपनी इज गोइंग टू मेक मोर प्रॉफिट्स इन कमिंग फ्यूचर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, दैट इज स्मेल अ रैट. स्मेल अ रैट का मतलब होता है कि हमें कहीं पे शक की आशंका है, हमें समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है. जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि दाल में काला होना. वी अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज रॉन्ग or someone is being dishonest. For example, she smelled a rat when her exam notes started disappearing from her cupboard. Another example is, people smelled a rat when police started visiting her house frequently. मतलब जब पुलिस बार बार उसे घर आने लगी तो लोगों को समझ में आया कि दाल में कुछ काला है या कुछ तो गड़बड़ है. स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स का मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट, किसी राज को या किसी भेद को बता देना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू टेल हर अबाउट माई प्लान्स ऑफ गोइंग अब्रॉड. शी हैज द हैबिट ऑफ स्पिलिंग द बीन्स. उसको राज खोलने की आदत है. Another example is, she spilled the beans about the surprise party. Surprise party रखी थी, but she spilled the beans. उसने सब कुछ सबको बता दिया. Take something with a grain of salt. That means आप किसी चीज को शक के साथ लेते हैं, उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते हैं. Something should not be believed there because there is doubt about that thing. For example, the news of a pay hike should be taken with a grain of salt. उसको बिलीव नहीं कर लेना चाहिए. It should be, उसको शक की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि it may be true or it may not be true. Another example is, online job offers must be taken with a grain of salt. जो ऑनलाइन जॉब ऑफर्स हैं वो उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए. They must be taken with a grain of salt. To hit the nail on the head. That means to be accurate or perfectly right in what you are saying or what you are doing. If somebody says something correct, something perfect or something accurate, that means he has hit the nail. For example, she has hit the nail on the head and now it has become easy to solve the problem. उसने बिल्कुल परेशानी कहां पर है वो बता दिया है, इसीलिए अब सॉल्यूशन ढूंढना आसान हो गया है. द इन्वेस्टिगेटिंग टीम हिट द नेल ऑन द हेड एंड अरेस्टेड द कल्प्रिट्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, देयर आर क्लाउड्स ऑन द होराइजन. देयर आर क्लाउड्स ऑन द होराइजन मीन्स सम ट्रबल और प्रॉब्लम्स आर अबाउट टू कम वेरी सून. बहुत जल्दी कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल, there is a peace between the two countries presently, but some issues are still unresolved
therefore there are clouds on the horizon. कुछ issues अभी भी unresolved हैं, therefore problems or troubles may come very soon. I hope these 6 idioms are clear to you. Now we will be moving to our next set of idioms. The next idiom is Achilles' heel. There is a story about this idiom, and once you know the story, I am sure that you will never forget the meaning of this idiom. Achilles was a hero of a Greek story. He was very brave and invincible. Invincible मतलब जिसको जीता ना जा सके. और उसकी मदर ने उसको जब वो छोटा बच्चा था एक रिवर में डिप किया, एक मैजिकल रिवर में डिप किया, जिसके बाद हर कोई इनविंसिबल बन जाता है. बट बिकॉज शी वॉज होल्डिंग हर बेबी बाय हर हील, वो हील वाला पोर्शन जो है वो बचा रह गया, वो डिप नहीं हो पाया. तो वो एकिलीज का हील था. तो जब वो बड़ा हुआ, बहुत सारी लड़ाइयों में गया, बैटलफील्ड्स में गया, नोबडी वॉज एबल टू डिफीट हिम. बट एक दिन उसके ओपोनेंट ने उसकी हील में एक तीर मारा एंड देन ही डाइड. तो एकिलीज हील का मतलब है अ पर्सन्स वीकेस्ट पॉइंट, किसी भी व्यक्ति का वीकेस्ट पॉइंट होना. आपने रामायण की कहानी में रावण के बारे में सुना होगा, उसका नेवल उसका वीकेस्ट पॉइंट था. इसी तरह एक महाभारत में दुर्योधन की भी कहानी है. अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उस कहानी को लिख के बताइए. तो एकिलीज हील का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का कोई वीकेस्ट पॉइंट होना. फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सेल्स एट एवरीथिंग बट हिज एंगर इज हिज एकिलीज हील. टर्न ओवर अ न्यू लीफ, दैट मीन्स टू स्टार्ट अफ्रेश और टू चेंज फॉर द बेटर. ये जिसका मतलब नए सिरे से शुरुआत करना. और यूजुअली ये लोगों के बारे में हम इसको यूज करते हैं जब लोग किसी बेटर चीज को करने के लिए जाते हैं या करना शुरू करते हैं अपने बारे में. फॉर एग्जाम्पल, शी had been very lazy for years, but now she is turning over a new leaf by prioritizing her work over her laziness. वो पहले लेजी थी पर वो अब नए सिरे से शुरुआत कर रही है अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी देके. Another example is he failed in cloth business, but now he is turning over a new leaf by opening a book shop. I hope it is clear to you, and if you have understood both these idioms, please make your own sentences and write them in the comment box. Your comments are a motivation for me. Now, when it rains, it pours. इसको हम पॉजिटिव वे में भी यूज करते हैं और नेगेटिव वे में भी यूज करते हैं. When it rains, it pours का मतलब है जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है, या फिर जब अच्छा होता है तो हर तरफ से अच्छा होता है. For example, I missed my train and I missed my job interview, and that day itself I fractured my leg. So when it rains, it pours. Another example है जो हमें पॉजिटिव रेफरेंस में इसको देखते हैं. She had qualified for almost all the competitive exams. When it rains, it pours. जब अच्छा होता है तो हर तरीके से होता है. Next है टू स्क्वायर द सर्किल. आप इस इडियम को पढ़िए, टू स्क्वायर द सर्किल. क्या कोई चीज सर्कुलर है उसको स्क्वायर कर सकते हैं? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो टू स्क्वायर द सर्किल का मतलब है टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल. और इसको हमेशा हम यूज करते हैं ट्राइंग टू ट्राई टू स्क्वायर द सर्किल. फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग अ ट्रैक without physical fitness is like trying to square a circle. आप physically fit नहीं है and you are trying to go on a trek, that means you are trying to square the circle. I hope the meaning is clear to you. Next is wrap your head or brain around. That means you are trying to understand or comprehend a complex idea. किसी बहुत कठिन चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं. For example, I am trying to wrap my head or brain around this business idea. मैं इस business idea को समझने की कोशिश
कर रहा हूं या मैं फिर इसे कर रही हूं. आई हैव बीन ट्राइंग टू रैप माई हेड और ब्रेन अराउंड दिस मैथ प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 2 hours. लास्ट 2 hours से मैं इस मैथ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं. तो रैप योर हेड और ब्रेन अराउंड मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू कॉम्प्रिहेंड अ कॉम्प्लेक्स आइडिया. नेक्स्ट idiom is under the thumb. अंडर द थंब का मतलब है किसी के एब्सोल्यूट कंट्रोल में होना, मतलब कि आप फील कर रहे हैं कि उस बंदे ने आपको अच्छे से कंट्रोल कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयज फील दैट दे आर अंडर द थंब ऑफ द स्ट्रिक्ट मैनेजर. और अनदर एग्जाम्पल इज, फॉर इयर्स द स्मॉल कंट्री वॉज अंडर द थंब ऑफ अ पावरफुल एम्पायर. Next idiom is to eat humble pie. There is a story behind it. Medieval times में kings and queens deer खाते थे. तो deer की बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते थे जिनको kings and queens नहीं खाते थे, उनको उनके सर्वेंट्स खाया करते थे. तो जो उन ऑर्गन से बनी हुई डिश को अम्बल पाई कहा जाता था. धीरे धीरे ये अम्बल पाई जो है हम्बल पाई में टर्न हो गया. सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस टू ईट अ हम्बल पाई. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दैट यू आर एडमिटिंग योर मिस्टेक व्हेन यू आर प्रूवन रॉन्ग. आप गलत साबित हो गए हैं, इसलिए अपनी मिस्टेक को आप एडमिट कर रहे हैं. दैट मीन्स टू ईट अ हम्बल पाई. फॉर एग्जाम्पल, he was boasting about himself before the race started, but he had to eat humble pie when he came last in the race. पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था रेस शुरू होने से पहले कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं. जब रेस में लास्ट आया तो उसको मुंह की खानी पड़ी और he had to admit that he was wrong. So that means he had to eat humble pie. Another example is, he mocked his friend's idea about his business, but when his friend became successful, he had to eat humble pie. पहले उसने अपने फ्रेंड की मजाक बनाई और जब उसका फ्रेंड सक्सेसफुल हो गया तो उसने अपनी मिस्टेक को एडमिट किया और माफी मांगी. दैट मीन्स ही एट अ हम्बल पाई. नेक्स्ट idiom is to play ducks and drakes. That means to waste money recklessly or carelessly. पानी की तरह पैसे को बहा देना. He played ducks and drakes with his father's hard-earned money and ended up in debt. उसने अपने फादर के पैसे को पानी की तरह बहाया और अब उस पर बहुत ज्यादा लोन हो गया है. नेक्स्ट इज to pour oil on troubled waters. That means the situation is very difficult. और कभी भी इस विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोसिव है सिचुएशन, बट आप क्या कर रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू काम द सिचुएशन. To pour oil on troubled water is to calm an explosive or difficult situation. For example, the brother tried to pour oil on troubled waters when his two sisters started fighting for a doll. I hope this is clear to you. Next is to work your fingers to the bone. That means you are working very hard and for a long time and you are not getting any reward out of that. इसका मतलब हिंदी में कमर तोड़ मेहनत करना जिसका आपको ज्यादा फल भी नहीं मिल रहा है. For example, the farmers work their fingers to the bone during the harvest season. जब हार्वेस्ट का सीजन होता है तो फार्मर्स कमर तोड़ करके मेहनत करते हैं. That means they work their fingers to the bone. Another example is the mother worked her fingers to the bone to support her family. Next idiom is to make bricks without straw. ब्रिक्स जब पहले बना करती थी, बहुत पहले, तो उसमें स्ट्रॉ भी लगाए जाते थे ताकि उसको शेप दिया जा सके. अब तो ब्रिक्स स्ट्रॉ के साथ नहीं बनती है, लेकिन पहले ऐसा होता था. तो टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ का मतलब है टू डू समथिंग विदाउट एम्पल और विदाउट सफिशिएंट रिसोर्सेज. यू आर ट्राइंग टू अचीव और अकॉम्प्लिश समथिंग बट यू डोंट हैव रिसोर्सेज. अब इसका एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल सेंटेंस इसका ये है, प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रैक विदाउट फिजिकल फिटनेस इज लाइक मेकिंग ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। मतलब कि आप उसमें जाना चाहते हैं, किसी ट्रैक में जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, तो इट इज लाइक टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, द बॉस हैज नॉट गिवन अस एनी डेटा बट ही expects us to do this in a day. It is like to make bricks without straw. Next is out of frying pan into the fire. मतलब आप एक सिचुएशन, खराब सिचुएशन से निकलना चाहते हैं पर दूसरी खराब सिचुएशन में पड़ जाते हैं, जैसे हिंदी में कहेंगे आसमान से गिरे खजूर पर अटके। तो आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू फायर, दैट मीन्स शी टुक अ शॉर्टकट टू अवॉइड द ट्रैफिक बट हर कार ब्रोक डाउन एंड शी फेल्ट लाइक गोइंग आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। समझ में आ गया? और अगर समझ में आ गया तो इसका एक सेंटेंस बना दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस आप सुन लेंगे, शी लेफ्ट हर स्कूल टू बिकॉज देयर वाज सो मेनी स्टे बैग्स। बहुत सारे स्टे बैग थे इसलिए उसने अपना स्कूल छोड़ दिया, बट इन द न्यू स्कूल शी हैड टू स्टे ऑन संडेज टू। इट वॉज लाइक जंपिंग आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। एक बैड सिचुएशन से निकलकर दूसरी बैड सिचुएशन में फंस जाना के लिए हम यूज करेंगे दिस इडियम, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। नेक्स्ट इज पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। मतलब अगर कोई व्हील चल रहा है उसमें कोई लकड़ी फंसा दोगे तो क्या होगा? व्हील चलना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है टू पुट हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स इन समवन्स प्लान और प्रोग्रेस। कोई आदमी अपना कोई काम कर रहा है, कोई वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप उसमें ऑब्स्टिकल्स या बाधाएं डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हिज कलीग्स स्प्रेड rumors about him and thus put a spoke in someone's wheel। मतलब उसके बारे में उन्होंने फालतू की अफवाहें छुड़ाई, फैला दी और इससे क्या हुआ? उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रुक गई। Another example is don't try to put a spoke in her wheel when she is trying to start a new business। नेक्स्ट idiom is open the floodgates। इसका मीनिंग है to cause a sudden and uncontrollable flow of something। मतलब कि बाढ़ आ जाना। अब ये बाढ़ या फ्लो किस चीज का हो सकता है? इट कैन बी ऑफ इमोशंस, इट कैन बी ऑफ रिक्वेस्ट, इट कैन बी ऑफ कंप्लेंट्स। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। द ट्रेजिक एंड ऑफ द मूवी opened the floodgates of emotions. Everyone was crying. Another example is the company allowed an employee to work from home and after that it opened the floodgates of more such requests। एक एम्प्लॉय को अलाउ किया कि घर से काम कर ले, उसके बाद इस तरह की रिक्वेस्ट का फ्लड गेट खुल गया, ऐसे रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई। तो ओपन द फ्लड गेट्स मीन्स बाढ़ आ जाना। नेक्स्ट इज हाफ ऑन सेम स्ट्रिंग और थिंग। मतलब एक ही बात को बार बार, एक ही बात की रट लगाए रहना या एक ही बात को बार बार कहते रहना, और जिससे कि वो कैसे लगती है? बोरिंग और रिपीटेटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉस हार्प्ड ऑन सेम स्ट्रिंग और थिंग अबाउट मोर एंड मोर वर्क। हर बार मीटिंग में बॉस बस एक ही बात की रट लगा के रखता है, एंड दैट इज टू वर्क hard or to work more। I hope this is clear to you. If it is, then make a sentence of your own and write it in the comment box। Next idiom is go down in flames। That means कोई चीज पूरी तरह से फेल हो गई है, to fail completely and often with embarrassment। और फेल होने के साथ साथ embarrassment भी होता है। For example, his reputation went down in flames
after he was arrested for the corruption charges. तो उसकी जो रेपुटेशन थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई जब करप्शन चार्जेस में उसको पकड़ा गया. दैट मीन्स उसको एम्बैरेसमेंट भी हुआ. तो गो डाउन इन फ्लेम्स मीन्स टू फेल कंप्लीटली, और उसमें आपको एम्बैरेसमेंट भी हो रहा है. नेक्स्ट इज अ वाइल्ड गूज चेज. इसका मतलब है टू ट्राई टू अकम्प्लिश समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव और दैट डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसी चीज को पाने की कोशिश करना जो है ही नहीं या जिसको पाना इम्पॉसिबल है. दैट मीन्स द सर्च फॉर द केव फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टर्न आउट टू बी अ वाइल्ड गूज चेज. तो मतलब जो सर्च कर रहे थे केव में कि वहां पे बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, वो कैसी थी? अ वाइल्ड गूज चेज, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था या फिर वो इम्पॉसिबल टू अचीव था. नेक्स्ट इज कट नो आइस. कट नो आइस का मतलब टू कॉज नो इन्फ्लुएंस, कि आपकी बात का बिल्कुल भी असर नहीं होना. हिज एक्सक्यूजेस कट नो आइस विद द टीचर. टीचर को उसकी एक्सक्यूजेस का से कोई फर्क नहीं पड़ा. Another example is power and money cut no ice with the honest judges. I hope this is also clear to you. Last idiom is fit as a fiddle. इसका मतलब है to be energetic and healthy. Even in his 80s, my grandfather is as fit as a fiddle. मतलब वो 80s की एज में है, फिर भी वो कैसे बिल्कुल फिट है, एनर्जेटिक है. दैट मीन्स ही इज फिट एज फिडल. सो दिस इज फॉर today's video. I hope you could understand all the idioms done in today's video, and if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe, share and comment on the video. Thank you.